Bismillahirrahmanirrahim. Peshawar Public School and College. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about unit number 13, S&P block elements, lecture number 12. The topics which we are going to discuss are trend in the solubility of hydroxides, carbonates and sulfates of group 2 elements, and then the peculiar behavior of beryllium. Now the learning objectives are trend in the solubility of hydroxides, carbonates, sulfates on the basis of two different tricks, and then the peculiar behavior of beryllium on the basis of different reasons and properties. Now trend in the solubility of hydroxides, carbonates and sulfates of the group 2 elements. So first we will discuss that the solubility of the hydroxides of the group 2 elements, it will increases when we go from top to bottom in group 2A. While the solubility of the carbonates and sulfates of the group 2, it will decreases when we go from top to bottom. Now the question arises why the solubility of hydroxides of group 2 it will increases while the solubility of carbonates and sulfates of the group 2 it will decreases when we go from top to bottom. So we discuss the trend in the solubility by taking some reasons number one, we will discuss the lattice energy and the hydration energy, and then on the basis of lattice energy and hydration energy we will discuss the trend in the solubility. In the same way we will also discuss the trend in a decrease in the solubility or increase like I can say the trend in the solubility also on the basis of difference in the size of ions, cation and anion. So the first point of discussion which we are going to discuss, that is lattice energy and hydration energy. So first, as you know from your previous course, that the lattice energy is the measure of energy contained in the crystal lattice of a compound, which is equal to the energy released if the component ions were brought together from infinity. And the second definition is it is the amount of energy absorbed when 1 mole of crystal lattice or solid ionic compound it is broken down into its gaseous constituent ions. सो लेटेस्ट एनर्जी को डियर स्टूडेंट्स हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज़ होती है जब 1 मोल ऑफ गैसेस आइंस आपस में कंबाइन होते हैं और क्रिस्टल लैटिस 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं. तो जैसे बॉन्ड फार्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ कंपाउंड जो है उसकी ब्रोकन डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए उसमें आइंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में जो कि गैसियस स्टेज में होंगे, तो उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको भी हम लैटिस एनर्जी कह सकते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में अगर आप देख लें तो सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी जो ब्रेकिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आइंस में, तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ब्रेकिंग में वो 786 किलो जॉल पर मोल है. So this is about lattice energy. Now what is hydration energy? Or hydration energy is also called hydration enthalpy. So we define it. It is the amount of energy which is released when 1 mole of ions undergoes in the process of hydration. अच्छा, अब जैसे हमने लेटेस्ट एनर्जी में डिस्कस किया कि उसमें जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मिंग जो है प्रोसेस के दौरान एनर्जी का जो एब्जॉर्ब होना या रिलीज़ होना है, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है जब हमारे पास जो आयंस है जैसे कैट आयंस और एन आयंस क्रिस्टल की जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको वाटर मालिक्यूल सराउंड कर लेते हैं. जैसे आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि सोडियम आयन को वाटर मालिक्यूल इस तरह से सराउंड करता है कि उसका जो ऑक्सीजन पार्ट होता है नेगेटिव वो सोडियम आयन की तरफ होता है, और जो क्लोराइड आयन है उसको वाटर मालिक्यूल इस तरह से सराउंड करता है कि वाटर का जो हाइड्रोजन आयन होता है वो क्लोराइड आयन की तरफ होता है, क्योंकि क्लोराइड आयन नेगेटिव है और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है. सो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब ये है कि उस प्रोसेस के दौरान कि जब उस कंपाउंड की हाइड्रेशन हो, मींस वाटर उसके वो सराउंड करे, उसकी ब्रेक डाउन हो, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. सो हाइड्रेशन एनर्जी इट रिलेट्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लैटिस वाइल द लैटिस एनर्जी रिलेट्स टू फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ अ लैटिस. अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी में हम यही कहेंगे कि उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ लैटिस होंगी, ब्रेक डाउन ऑफ लैटिस होगा और उसको सराउंड करेगी वाटर मालिक्यूल, जबकि लैटिस एनर्जी में फॉर्मेशन भी हो सकती है और ब्रेकिंग भी हो सकती है लैटिस की. Now the examples of hydration energy as provided to you. Anhydrous calcium chloride heats the water when dissolving. आप जब कैल्शियम क्लोराइड वाटर में ऐड करते हैं उसके क्रिस्टल को तो
वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है। इट मीन्स के वहाँ पे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो गया है और हाइड्रेशन हुई है, जैसे कैल्शियम और क्लोराइड इनकी ब्रेक डाउन हुई है, उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स ब्रेक डाउन व्हेन एडेड टू वाटर, ये भी हम कह सकते हैं इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में। Now the explanation of solubility on the basis of lattice energy and hydration energy और enthalpy of hydration। अब जैसे मैंने आपको शुरू में कह दिया डियर स्टूडेंट्स के जो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी उसको हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बेस पे हमने आगे सॉलिबिलिटी ट्रेंड को डिस्कस करना है। अच्छा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज व्हाइल द चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, कोशिश करें कि उसको गौर से सुनें। जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो कैटायन है उसका साइज़ ज़ाहिर इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ जो शेल्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो कैटायन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। हम मेटल्स की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं ग्रुप 2A की बात करूँगी कि आप अगर देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो बेरियम का जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा होगा, इसी तरह बेरिलियम का सबसे छोटा होगा, जबकि चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? चार्ज टू साइज़ रेशो। हम बाज़-औक़ात कहते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है कि बस +2 चार्ज है पूरे ग्रुप में, लेकिन अगर हम डिटेल में पढ़ें तो हम कहेंगे कि जो चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज टू साइज़ रेशो है। तो जब साइज़ बढ़ता है और चार्ज वही रहता है तो ज़ाहिर है आप एक छोटी वैल्यू को एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें तो वो और छोटी हो जाती है। तो साइज़ के लिहाज से जब साइज़ बढ़ता है और चार्ज वही रहता है तो चार्ज टू साइज़ रेशो, जिसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह हम कहेंगे कि साइज़ का जो है वो चार्ज डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जब साइज़ इंक्रीज़ होता है तो चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नाउ अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो लेटेस्ट एनर्जी है उसका चार्ज डेंसिटी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसका सॉलिबिलिटी के साथ रिलेशन किस तरह है, या इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी का लेटेस्ट एनर्जी से और सॉलिबिलिटी से क्या रिलेशन है। यानी इन दोनों एनर्जीज़ के बेस पे हम सॉलिबिलिटी ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। So the lattice energy, it will be greater if the charge density will be greater, because the ions will be tightly bound to each other and their breaking will require more energy and the solubility will decreases in result। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी है, साइज़ ऑफ कैटाइन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, अब अगर चार्ज डिक्रीज़ हो रही है, सॉरी, अगर चार्ज डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होंगी, जैसे टॉप वाले एलिमेंट्स की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है बेरिलियम की, तो उनकी ज़ाहिर लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होंगी और उनके जो आयंस है वो टाइटली बाउंड होंगे, तो उनकी जो ब्रेकिंग होगी, बेरिलियम का अगर कोई साल्ट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड है, तो अगर हम उसको ले लें, फर्स्ट मैं हाइड्रोक्साइड्स को डिस्कस करूँगी, तो बेरिलियम की जो हाइड्रोक्साइड्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो बहुत स्ट्रांग होंगी, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेरिलियम जो है उसके साइज़ छोटे होने की वजह से और उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा है। अब अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो लेटेस्ट एनर्जी जब उसमें मीन्स यानी आयंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसकी ब्रेकिंग मुश्किल हो जाएगी। अब जब उसकी ब्रेकिंग मुश्किल हो जाएगी तो उसको सॉल्युबल बनाना मुश्किल हो जाएगा, मीन्स लेटेस्ट एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज़ आएगा। यानी इनमें इनडायरेक्ट रिलेशन है। जब लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होंगी, क्रिस्टल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी का और सॉलिबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरह हम अगर हाइड्रेशन एनर्जी का सॉलिबिलिटी के साथ रिलेशन डिस्कस करें, सो ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज विद इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ द कैटायन इट विल डेवलप मोर अट्रैक्शन विद द वाटर एंड रिलीजेज मोर एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी टू लॉस ऑफ एनर्जी एंड ग्रेटर विल बी द सॉलिबिलिटी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले मैं लेटेस्ट एनर्जी और चार्ज डेंसिटी का और सॉलिबिलिटी का, या हाइड्रेशन एनर्जी उसका चार्ज डेंसिटी के साथ और सॉलिबिलिटी के साथ रिलेशन डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या हो रहा है, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले पेज पे। सो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसका चार्ज डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितना जितना कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वाटर के साथ उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वाटर जो है वो उसको मोर स्ट्रांगली जो है बाउंड कर सकेगा। तो हम यहाँ पर एक बात कहेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी जब चार्ज डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होंगी, जैसे टॉप वाले एलिमेंट्स की हम बात करेंगे कि उनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जब हम बॉटम पे आ जाए चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है।
अब हाइड्रेशन एनर्जी का सॉलिबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। ज़ाहिर जैसे कि आपको मैंने कहा कि जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, केटाइन का साइज़ बढ़ेगा, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वाटर के साथ वो मोर डेवलप होंगी। तो इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होंगी। तो जब वाटर के साथ उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर डेवलप हो रही है, तो इट मीन्स कि सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह लेटेस का भी डायरेक्ट था, लेकिन लेटेस एनर्जी का सॉलिबिलिटी से इन्वर्स रिलेशन था, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी से सॉलिबिलिटी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पर अगर आप देख लें, आपको डायग्राम से शो किया हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है सोडियम क्लोराइड, पहले उसकी लेटेस्ट एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन होंगे, चाहे जितने भी फासले पे मौजूद है, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि फ्रॉम इन्फिनिटी, चाहे कितने भी दूर मौजूद है, उसको हम जब करीब लाएंगे तो उस दौरान बार्ड फार्मेशन होगी, लेटस बनेगा, क्रिस्टल लेटस, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, या इसकी ब्रेकिंग में जो एनर्जी होगी वो कंज्यूम हो जाएंगी। यानी दोनों तरह से हम लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे देख ले हाइड्रेशन एनर्जी में कि सोडियम आयन को वाटर ने सराउंड किया है उसका जो ऑक्साइड है सोडियम की तरफ है, सोडियम आयन की तरफ है ऑक्सीजन जो है, और क्लोराइड आयन को भी वाटर ने इस तरह सराउंड किया कि उसकी जो हाइड्रोजन है वो क्लोराइड आयन की तरफ है। इस तरह वाटर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है सोडियम और क्लोराइड के साथ। तो उस दौरान जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के दौरान, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल जो है वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है जब एनर्जी रिलीज़ होती है। अब हम जब लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी हमने पहले डिफ़ाइन किया, फिर हमने उसके रिलेशन जो है वो सॉलिबिलिटी के साथ डिस्कस किए और चार्ज डेंसिटी के साथ। अब हम हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी को, फिर उसके बाद कार्बोनेट्स और फिर सल्फेट्स को डिस्कस करेंगे ट्रेंड में, उनके फॉर्म में टॉप टू बॉटम के, उसमें क्या चेंज आ रहा है। जैसे ईटा टेस्ट में भी मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, तो पहला ट्रिक मैंने इस तरह सजेस्ट किया है कि जैसे हम लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, और सेकंड ट्रिक में हम डिसाइड करेंगे कैटायन एनायन के साइज़ के डिफरेंस पे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे जो गिवन है सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 2A एलिमेंट्स, और उसके साथ उसकी KSP वैल्यू गिवन है। तो आप अगर चेक कर ले तो जो सबसे लास्ट जो हाइड्रोक्साइड है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसकी KSP वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका अगर आप पावर चेक कर ले तो वो माइनस में है, लेकिन उसके साथ सबसे छोटी वैल्यू लग रही है। तो इट मीन्स कि वो उसका KSP वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो KSP वैल्यू का जो रिलेशन है वो सॉलिबिलिटी से डायरेक्ट है। जैसे फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं, जितनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उस कंपाउंड की सॉलिबिलिटी होगी। तो इसका मतलब है कि जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ये KSP वैल्यू के बेस पे मैंने बात की है। अब हम लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे बात करेंगे। ये वाली ऊपर वाली जो बात ये बुक में डिस्कस हुई, इस वजह से मैंने यहाँ पे ली है। ज़रूरी नहीं कि आपको वैल्यूज़ याद हो, लेकिन आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि जो टॉप टू बॉटम है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। अच्छा, अब हम लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले पेज पे बता दिया कि जो लेटेस्ट एनर्जी है, जो चार्ज डेंसिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, और चार्ज डेंसिटी का लेटेस्ट एनर्जी से और हाइड्रेशन एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट एनर्जी में और हाइड्रेशन एनर्जी में भी डिक्रीज़ आएगा, यानी डिक्रीज़ इन लेटेस्ट एनर्जी और डिक्रीज़ इन हाइड्रेशन एनर्जी होगा। अब क्योंकि दोनों का चार्ज डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि लेटेस्ट एनर्जी का सॉलिबिलिटी के साथ तो इन्वर्स रिलेशन है, जैसे कि पिछले हमने डिस्कस किया पिछले पेज पे, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी के साथ लेटेस्ट एनर्जी का जो सॉलिबिलिटी का है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो बाज़ औक़ात हम दो चीज़ें कंपेयर करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उसमें एक्सपेरिमेंटली अगर हम चेक करें तो जो डिक्रीज़ इन लेटेस्ट एनर्जी है वो ज़्यादा है डिक्रीज़ इन हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले में, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जब डिक्रीज़ इन लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इंक्रीज़ इन सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगा। यानी टॉप टू बॉटम जब हम जाएँ और डिक्रीज़ इन लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इंक्रीज़ इन सॉलिबिलिटी होगा। अगर हम ये इस तरह से लेते कि डिक्रीज़ इन हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो फिर तो डिक्रीज़ इन हाइड्रेशन ज़्यादा है तो डिक्रीज़ इन सॉलिबिलिटी पर होता, क्योंकि हमारे पास डिक्रीज़ ही हो रहा है, टॉप टू बॉटम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में भी डिक्रीज़ आ रहा है, क्योंकि उनका चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ, सो लेटेस्ट एनर्जी में जो डिक्रीज़ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले में। तो हम कह सकते हैं कि जब लेटेस्ट एनर्जी में डिक्रीज़ ज़्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है।
अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, सेकंड हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। अब यहाँ पे ये जो टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं कार्बोनेट्स के केस में, बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट की तरफ, या बेरिलियम सल्फेट्स में बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे उसके मुकाबले में जो है वो अपोजिट बात चल रही है। यानी यहाँ पे टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बजाय इंक्रीज़ होने के वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिक्रीज़ इन लेटेस्ट एनर्जी जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना डिक्रीज़ इन हाइड्रेशन एनर्जी प्रोमिनेंट होगा। तो जब डिक्रीज़ इन हाइड्रेशन एनर्जी प्रोमिनेंट है, मोर डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है उसमें भी डिक्रीज़ आ रहा है टॉप टू बॉटम। और इन केस ऑफ कार्बोनेट्स यहाँ पर हम एक और बात भी डिस्कस करेंगे कि आपकी बुक में बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या बॉन्ड मेकिंग एनर्जी, उसके डिफरेंट टेम्परेचर्स के बने अगर आप देख लें, जैसे लेस देन 100 डिग्री सी इन केस ऑफ बेरिलियम कार्बोनेट, फिर 540 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और लास्ट में जो बेरियम कार्बोनेट 1360। इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग यानी लेटेस्ट एनर्जी जब इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी ब्रेक डाउन मुश्किल हो जाएगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी मुश्किल हो जाएगी टॉप टू बॉटम, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर एक और बात मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बताती चलूँ कि जो स्ट्रांशियम, जब हम नीचे आते जाएँ टॉप टू बॉटम, तो स्ट्रांशियम या बेरियम का जो कार्बोनेट है या स्ट्रांशियम बेरियम का जो सल्फेट है, इवन ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ क्या बल्कि ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये इनसॉल्युबल है। Now next is the trick for the solubility on the basis of difference in size of the cation and anion। उम्मीद है कि आपको जो पिछला मैंने डिस्कस किया उसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो आप होमवर्क ग्रुप में पूछ सकते हैं। नाउ इस ये जो ट्रिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मोस्टली आपको हेल्प करेगा उसमें आपकी ईटा टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है और आपको उसकी मैं वीडियो लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो नाउ हाइड्रोक्साइड जो है उसका जो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कैटाइन और एनाइन के साइज़ में अगर डिफरेंस नहीं होगा, कम होगा, तो वो लेस सॉल्युबल होगा। लेकिन क्योंकि उसकी ब्रेकिंग मुश्किल हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा डेवलप होंगी जब वो एक जैसे साइज़ के होंगे, चाहे वो लार्ज लार्ज है या चाहे वो स्मॉल स्मॉल है। लेकिन अगर वो लार्ज स्मॉल या स्मॉल लार्ज हैं तो उसमें फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे, उसकी ब्रेक डाउन ईजी होगी, तो उधर उस केस में फिर सॉल्युबिलिटी जो है वो यानी जो साइज़ डिफरेंस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर जैसे मैं आपके लिए एनाइंस लिए, मैं कैटाइन तो आपको समझ आ जाती है ख़ुद से भी कि बेरिलियम का सबसे छोटा साइज़ और बेरियम का सबसे बड़ा साइज़ है जब हम टॉप टू बॉटम जाएँ। तो जो हाइड्रोक्साइड्स है आयन है वो स्मॉल साइज़ एनाइन है, इस एनाइन का साइज़ छोटा होता है। बाकी जो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट या क्लोरेट या इसके अलावा और भी कुछ जो नेगेटिव आयन हैं उनका साइज़ लार्ज होता है, तो ये लार्ज साइज़ एनाइन है। अब आपके पास केस नंबर 1 हम लेते हैं कि अगर आपके पास स्मॉल साइज़ कैटाइन एनाइन दोनों का स्मॉल साइज़, इट मीन्स कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, वो न्यूक्लियस के करीब होंगे, तो इनके साइज़ में डिफरेंस इतना नहीं है जिसकी वजह से इनकी ब्रेकिंग मुश्किल हो जाएगी और ये जो है लेस सॉल्युबल होंगे। अब अगर हम केस नंबर 2 में ले लें, जैसे स्मॉल साइज़ लार्ज साइज़ हो, जैसे कैटाइन लार्ज स्मॉल साइज़ और एनाइन लार्ज साइज़, तो उसमें इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी, उसके साइज़ में डिफरेंस है। तो जब लार्ज वो होगा, चाहे आप लार्ज साइज़ कैटाइन ले लें, स्मॉल साइज़ एनाइन, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो जब ग्रेटर डिफरेंस है उनके साइज़ में, तो सॉल्युबिलिटी जो है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि वो साइज़ में उनका डिफरेंस है, तो उनकी ब्रेकिंग ईजीली हो जाएगी और ये मोर सॉल्युबल होंगे। तो हम कहेंगे कि जब लार्ज साइज़ डिफरेंस होगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर होंगी। अब इस जो ट्रिक है इसकी बेस पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं हमारे पास, चूँकि इस टॉपिक में हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स डिस्कस हुए हैं। तो अगर आप हाइड्रोक्साइड्स में देख लें, हम पहला और लास्ट वाला लेंगे, जो बेरिलियम है उसका स्मॉल साइज़ होता है और हाइड्रोक्साइड का भी स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल साइज़ में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ये लेस सॉल्युबल होगा, इसकी ब्रेकिंग मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, राइट साइड पे आप आ जाए, लार्ज साइज़ स्मॉल साइज़, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होंगी, इसकी ब्रेकिंग ईजी होंगी, तो ये मोर सॉल्युबल होगा। यानी जब हम टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स में डिस्कस करें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड्स की पे, तो इट मीन्स कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह अगर हम कार्बोनेट्स को ले लें तो कार्बोनेट का तो साइज़ लार्ज है,
हाइड्रोक्साइड का तो स्मॉल था, यहाँ पे बेरिलियम का साइज़ स्मॉल है। तो स्मॉल साइज़ लार्ज साइज़ अगर आप देख रहे हैं बेरिलियम और कार्बोनेट को, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, इसकी इजीली ब्रेक डाउन होंगी। जबकि बेरियम कार्बोनेट लार्ज साइज़ है, तो ये तो ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगी, एक जैसे साइज़ वाले हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगी, तो इनकी ब्रेकिंग मुश्किल हो जाएगी और इनकी सॉलिबिलिटी भी मुश्किल हो जाएगी। तो यानी टॉप टू बॉटम अगर हम कार्बोनेट्स में ग्रुप 2 के डिस्कस करें, तो बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट की तरफ सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। जबकि सल्फेट्स में अगर आप देख ले, तो फिर सल्फेट फिर लार्ज साइज़ एनाइन है और बेरिलियम उसके साथ स्मॉल साइज़ है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाए, इसकी इजीली ब्रेकिंग होगी और ये इजीली सॉल्युबल होगा। जबकि बेरियम सल्फेट में लार्ज साइज़ है सल्फेट भी बेरियम भी, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी और इसकी ब्रेकिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी लेस होगी, बल्कि इनसॉल्युबल हो जाती हैं आखिर में सल्फेट और कार्बोनेट जो स्ट्रॉन्शिप और बेरियम के हैं। तो जब हम लेफ़्ट टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट की तरफ सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। नाउ टेस्ट योर सेल्फ फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रेट इन केस ऑफ सेकेंड ग्रुप नाइट्रेट। अब अगर हम ये ले लें नाइट्रेट, आपको मैं बता चुकी हूँ कि लार्ज साइज़ A9 है, बाकी आपको केटाइंस के साइज़ का पता है, तो आप इसको जो है अपने खुद करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के यहाँ पर पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम मींस के जो जैसे जनरली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे पास किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम जो है वो लिथियम जो है वो सेकंड नंबर पे है। लेकिन हम उसको अगर लिथियम को ले लें, तो लिथियम का जो है फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का सेकंड ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ एक डायगोनल के फॉर्म में एक रिलेशन होता है। ये पहले कोर्सेज में होता भी था, जिसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते थे। मींस यानी फर्स्ट ग्रुप किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप से डिफरेंट होती है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अगले ग्रुप के अगले मेंबर के साथ, जैसे अगर मैं पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट ले रही हूँ, तो अगले ग्रुप का जो होगा वो दूसरा एलिमेंट होगा, तो उसका डायगोनल के फॉर्म में, वो एक डायगोनल के फॉर्म में उनमें एक रिलेशन बना जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती है। तो इस तरह बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ है, बेरिलियम का भी मैग्नीशियम उसके साथ अगले ग्रुप के आई थिंक एलुमिनियम के साथ उसका जो है डायगोनल रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर जो बेरिलियम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी तमाम जो एलिमेंट्स है इसी ग्रुप के, उससे डिफरेंट है, और वो उसको हम कुछ रीज़न्स के बेस पे डिस्कस करेंगे कि बेरिलियम में कुछ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयोनाइजेशन एनर्जी, वो प्रॉपर्टीज़ या साइज़ वगैरह बाकी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप से डिफरेंट है। इस वजह से बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर IX है। वाई बेरिलियम डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। कभी कभी ये लॉन्ग में भी आ जाता है, तो कोशिश करें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल ऐड करें, क्योंकि कभी कभी ये लॉन्ग में भी आ जाता है और मोस्टली आता है, ज़्यादा पेपर्स में आया हुआ भी है। सो अब जो बेरिलियम है वो इट डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ड्यू टू द फॉलोइंग। नंबर 1 इज स्मॉल साइज इन हाई पोलराइजिंग पावर। अब जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो कि जो स्मॉल साइज आयन होंगे, बेरिलियम एटम्स होंगे मेटल की, या आयंस होंगे, स्मॉल साइज़ कैटाइन जो होते हैं, उनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो एक एनाइन को इजीली डिस्टॉर्ट कर सकता है। उस न्यूक्लियस के बाउंड की अट्रैक्शन उसके साथ मौजूद होती है, तो वो इसीलिए अट्रैक्ट करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर देता है, जैसे हम पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर में उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बेरिलियम बाकी मेंबर्स से इस तरह डिफरेंट है कि उसका एक तो साइज़ छोटा है और उसका पोलराइजिंग पावर उस वजह से साइज़ के छोटे होने की वजह से ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि जो स्मॉल साइज़ वाले एटम्स होते हैं, वो चूँकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, तो वो शेयरिंग करते हैं, तो वो ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादातर कोवेलेंट होंगे, जबकि बाकी ग्रुप के जो कंपाउंड्स होंगे वो आयनिक हो सकते हैं, बल्कि होते भी हैं। जबकि सेकंड जो पॉइंट है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे बेरिलियम का साइज़ छोटा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर सकेगा, न्यूक्लियस के करीब है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अलावा वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई है। नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आ जाए, जहाँ लिखा हुआ है हीलियम, तो ये 1s2 की जगह हम हीलियम लिख लेते हैं, क्योंकि वो वाला शेल उसका इनर्ट गैस की तरह उसकी कन्फिग्रेशन आगे 2s2 है। अब चूँकि इसका जो वैलेंस शेल है वो 2 है, और 2 जो शेल होता है उसमें फर्दर 2 सब शेल्स होते हैं, जैसे S और P।
तो बेरिलियम का 2s2 जो है वो तो उसका वैलेंस शेल है, सब शेल है जो कि फिल्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से। 1s2 को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जो उसके साथ आगे होगा 2p, यानी जस्ट पीस में होता है तो 2p होगा, तो 2p भी इसका वैकेंट होगा। यानी आगे जब बॉन्डिंग हम डिस्कस करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन p में जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसी टॉपिक का। लेकिन इसमें डी जो सब शेल है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि 2 शेल में जो है सिर्फ 2 ही सब शेल होते हैं, एस और पी। इसमें डी नहीं होता। बाकी अगर हम नीचे आ जाए तो 3 में 3d भी आ सकते हैं, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी डी, 6 में और 7, इन सब में डी सब शेल मौजूद है। तो डी जो ऑर्बिटाल है, ऑर्बिटाल में कहूँगी यहाँ पर जिसमें डी एक्स डी वाई डी जेड और आगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आते हैं, वो उसमें बेरिलियम में एब्सेंट है, जबकि बाकियों में मौजूद है, जिसकी वजह से जो बेरिलियम है वो डिफरेंट तरह की का कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। मींस आगे आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर भी इस तरह से आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे याद है कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में आइडिया दिया था इसका कि जितने उसके वैकेंट ऑर्बिटाल होंगे तो उतने उसमें कोई और जो स्पीशी है जो उसमें लॉन पेयर डोनेट कर सके, तो वो उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएगा कम्प्लेक्सेस जो बनती हैं हमारे पास। तो जो चूँकि बेरिलियम में वैकेंट डी ऑर्बिटाल नहीं है जबकि बाकियों में मौजूद हैं, इस वजह से बेरिलियम का जो ये बिहेवियर है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है इन 3 रीजंस की वजह से। नाउ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हार्डनेस, बेरिलियम इज़ अ हार्ड व्हाइल अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर रिलेटिवली सॉफ्ट। अब बेरिलियम हार्ड है तो बेरिलियम के अगर आप लोगों ने देखा होगा ये जो पाइप्स होते हैं ज़्यादातर बेरिलियम कॉपर अलॉय से बने होते हैं, स्टील टाइप पाइप्स होते हैं। इसी के इस तरह वो है बाकी जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो सॉफ्ट है। बेरिलियम का एक तो साइज़ भी छोटा है और उसकी जो पैकिंग होती है कम्पैक्ट होती है, थोड़ा सा मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस भी किया था। नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर अब आप इस ग्राफ्स को देख लें तो इसमें बेरिलियम जो है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट भी आपको गिवन है इस एक ग्राफ में, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है। तो जो बेरिलियम है उसका सबसे हाई है मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, वो उसके स्मॉल साइज़ और क्लोज पैकिंग की वजह से है। तो इसका मतलब है कि बेरिलियम बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। इसी तरह अगर कोवैलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम भी मैंने डिस्कस किया था कि बेरिलियम का साइज़ चूँकि छोटा है तो वो ज़्यादातर उसके जो कंपाउंड होंगे वो कोवैलेंट होंगे, जैसे इसके जो ऑक्साइड्स होंगे या नाइट्राइड्स होंगे या सल्फाइड्स या क्लोराइड्स, वो तमाम कोवैलेंट इन नेचर होंगे। जबकि बाकी जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप है उसके ये तमाम कंपाउंड जो है वो आयोनिक इन नेचर होंगे। नाउ नंबर 4, रिएक्शन ऑफ बेरिलियम विद ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये भी पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले किसी टॉपिक में कि जो बेरिलियम है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये जो बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है वो बेरिलियम के ऊपर एक कोटिंग बना देता है जो कि उसको फर्दर रिएक्शन से रोकता है। और ये जो पहला रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे शुरू में, वो बहुत हाई टेम्परेचर से 800 डिग्री से यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है, जबकि बाकी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेते हैं, जबकि ये जो है ये इजीली रिएक्ट नहीं करता, ये लेस रिएक्टिव है। नाउ रिएक्शन विद वाटर जो है, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर वाइल अदर मेंबर्स लाइक मैग्नीशियम इट रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर इन फॉर्म ऑक्साइड्स इन लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन अगर अदर मेंबर में हम मैग्नीशियम को ले लें जो सेकंड नंबर पे है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। असल में इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है, बाज़ जगहों में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बने, लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही शुरू में बनता है। नाउ नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बेरिलियम और इसके अलावा और जो मेंबर्स है इस ग्रुप के, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं, लेकिन नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम और जो और एलिमेंट्स की जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स आपको पहले से पता होगा कि हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। तो जो वो है जो बेरिलियम के जो हाइड्राइड्स होंगे वो कोवेलेंट इन नेचर होंगे, उसमें उसके स्मॉल साइज़ की वजह से वो मोस्टली शेयरिंग करता है, जबकि बाकी जो वो है उनकी आयनिक नेचर के होंगे। इसी तरह कलर टू द फ्लेम, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेरिलियम है उसके जो सॉल्ट्स होंगे वो कोई कलर नहीं देगा फ्लेम टेस्ट में, जबकि बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपना स्पेसिफिक कलर देते हैं, पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एंड बेरिलियम ऑक्साइड। अब जो बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होंगे वो वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि बाकी जो ऑक्साइड्स है इस ग्रुप के वो सॉल्युबल है वाटर में। इसमें थोड़ी बहुत आप रिएक्शन सर्च करके ऐड कर सकते हो। नाउ रिएक्शन ऑफ बेरिलियम विद अल्कलीज जो है, बेरिलियम जब अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है तो
बेरिलाइट्स जो है इसके कुछ कंपाउंड या कि नेक्स्ट पेज पे आपको गिवन है रिएक्शन में और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, जबकि अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप जो है वो अल्कलीज के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ अल्कली के साथ जब ये रिएक्ट करता है अल्कलीज दैट बेस विच इज सोलेबल इन वाटर, तो ये सोडियम बेराइलेट बनाता है, साथ वाटर और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम है, तो जो ये अक्सर पेपर में आ जाता है, बल्कि इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है पीछे है एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम डिस्कस करें। तो आपने सबसे पहले इसमें एम्फोटेरिक डिफाइन करना है। एम्फोटेरिक आर दो सब्सटेंसेस विच शो द बोथ द बिहेवियर ऑफ एसिड एज वेल एज लाइक बेस, both the acid and base behavior it will show. So the oxides and hydroxides of the beryllium both are amphoteric in nature. Like here I have given the reaction, while those of the alkaline earth metals their oxides and hydroxides are basic in nature. यहाँ पर अगर आप देख लें पहले हमने ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम को लिया है तो BeO प्लस HCl एसिड क्रिएट करे तो यहाँ पर ये बेस की तरह एक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और नीचे बेस के साथ क्रिएट करे तो एसिड की तरह एक्ट करेगा तो ये फिर सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, सो बेराइलेट्स बना रहा है यहाँ पे। फिर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम में अगर आप देखें एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे जो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। ऊपर बेरिलियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर बना है, नीचे एक कम्प्लेक्स बना है बेरिलियम का सोडियम के साथ। नाउ नेक्स्ट फ्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ द बेरिलियम। फ्लोराइड्स एंड सल्फेट्स जो बेरिलियम के होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, जबकि बाकी एलिमेंट्स के जो फ्लोराइड और सल्फेट होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। इसी तरह बिहेवियर ऑफ कार्बाइड्स आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि कार्बन के ऊपर उसमें -2 कभी और कभी -4 चार्ज लगता है, अच्छा का -4 मोस्टली है। सो कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम जो है वो वाटर में सॉल्युबल है और वो हमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल गैस हमें देते हैं। जैसे अगर आप देख लें नीचे रिएक्शन में गिवन है बेरिलियम Be2C, जबकि जो अगला मेंबर है ग्रुप का वो कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसके फार्मूले में भी चेंज है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात नोट कर ले आप लोग कि जो बेरिलियम कार्बाइड है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, कोवेलेंट इन नेचर। उसकी कार्बाइड का फार्मूला भी अगर आप देख ले डिफरेंट है। ये मैं आपको एंड में इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर दूंगी स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम कार्बाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। और जो कैल्शियम कार्बाइड है वो आयनिक इन नेचर है, तो उसका फार्मूला बेरिलियम कार्बाइड से डिफरेंट है। एक तो ये डिफरेंस हो गया, दूसरा ये डिफरेंस हो गया कि बेरिलियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये नेचुरल गैस में का जो मेन कंपोनेंट है मीथेन बना रहा है, साथ हाइड्रोक्साइड है। और जब कैल्शियम कार्बाइड के साथ जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन बना रहा है, या इथाइन हम इसको कह सकते हैं। इधर यहाँ पर अगर आप देख लें चूँकि बेरिलियम कार्बाइड में एक ही कार्बन है तो मीथेन बना है, और कैल्शियम ये नंबर ऑफ़ कार्बन पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट भी। और जो कैल्शियम कार्बाइड्स में 2 कार्बन है तो इथाइन बन गया। अब अगर हम आगे एक ऐसा कार्बाइड सपोज़ ले लें कि उसमें सपोज़ जो है उसमें उससे प्रोपाइन बन सकता है अगर उसमें 3 कार्बन हो सपोज़। इसी तरह नंबर 13 पॉइंट में है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ़ द बेरिलियम एंड अदर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था उसमें ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और जो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग थी उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। नहीं भी हो तो अब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में ये डिस्कस हुए, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेरिलियम जो है यानी मैं इस तरह कह सकती हूँ कि कोऑर्डिनेशन इज़ द नंबर ऑफ़ bonds formed by the central metal atom with the legend क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है जो बेस की तरह एक्ट करता है। तो जो बेरिलियम है वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसकी एक वजह है, यहाँ पर आपको मैं बताती चलूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बेरिलियम में d ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि बाकी मेंबर जो है वो 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी शो कर सकते हैं, मीन्स यानी वो 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं, जबकि जो बेरिलियम है वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर में देख लें जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, और ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। हाइड्रेशन ऑफ बेरिलियम टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, इट मीन्स के वाटर मालिक्यूल जिसको फिर आगे एक्साइटेड स्टेट में लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो 1s2 2s2 2p एनर्जी वाइज हमने इसको लिखा है क्योंकि 1s2 की एनर्जी कम होती है, 2s से 2p की ज़्यादा होती है। अब 1s2 चूँकि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है उसको हम नहीं लेते, लेकिन जो 2s2 है जब 2p इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन होने के यहाँ पर मैं एक बात बताती चलो, नीचे अगर आप एक्साइटेड स्टेट में आ जाए तो बेरिलियम मैंने लिखा हुआ है कि +2, यानी ये जो 2s2 इलेक्ट्रॉन्स है बेरिलियम इसको पहले लूज़ कर लेता है, तो बेरिलियम आयन फॉर्म में आ जाता है बेरिलियम +2। इसका मतलब है अब 2s
और 2p3 और 2s का सिर्फ एक ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं इक्वल जब हो जाते हैं एनर्जी में हाइब्रिडाइजेशन के बाद, और इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाती है। इस तरह 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इनको लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। यानी जो लॉन पेयर डोनेट करें तो इसका मतलब ये इसके साथ बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, यानी बेरिलियम सेंट्रल मेटल एटम बन गया और ये इसके लेजेंड्स बन गए जो कि लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट 4 बॉन्ड्स बना रहा है 4 लॉन पेयर की हेल्प से। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है वो बेरिलियम शो कर सकता है। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि आगे इसके पास कोई 3D ऑर्बिटल नहीं है। तो इस वजह से बेरिलियम का बिहेवियर है जो है वो बाकी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप से डिफरेंट है। नाउ होमवर्क में नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने जनरल दे दिया है क्योंकि ये एक्सरसाइज में नहीं है और ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि डिस्कस द ट्रेंड सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फेट। किसी एक पे अलग भी आ सकता है। आप 2 एलिमेंट्स पे एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 12 एंड नंबर 13। इसमें एक क्वेश्चन है वाई बेरिलियम क्लोराइड इज़ कोवेलेंट इन नेचर। तो उसको कोशिश करें कि आप लोग खुद से कर लें यूनिक बुक से, क्योंकि मैंने ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है सब कुछ। आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। बेरिलियम का के जो कंपाउंड होंगे, क्लोराइड है या जो भी है, वो कोवेलेंट इन नेचर होंगे। वो किस वजह से? वो उसके स्मॉल साइज़, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो फिर मैं आप लोग ग्रुप में शेयर कर लें, मैं देख लूँगी जिसका सबसे बेस्ट होगा तो वो फिर ग्रुप में दोबारा मैं शेयर कर लूँगी सबके साथ इंशाल्लाह। Now thank you and Allah Hafiz.